Evening to everybody. In the last lecture, we discussed on intellectual property right and plagiarism. How both concepts are interrelated to each others. We have been discussed in the last lectures, and after that, the similar concept, similar topic which are related to the plagiarisms we are going to discuss. So, how we can avoid the plagiarism and what are the plagiarism things? How someone claim plagiarism on our literatures and how we can claim about the plagiarism to on another's work. So it's very cautious thing. We should always aware about that, and if we will get the awareness regarding the intellectual property and plagiarism, then we will understand the situation. They can even tell from which site the content is copied. We should always use plagiarism checker tools in order to prevent plagiarism. Some of the plagiarism checking tools are Grammarly, small CO tools, Turnitin in Quetex, etc. Always provide correct references in your research paper or article. So in this way we can tell here about your research and learn how to cite your article, provide reference, use double quotation, etc. You should know how to write a scholarly article, a book research paper before you begin writing. So while we are writing something new work, new ideas, if it is you are writing the research paper, research article, then you should cite the articles, because while you are preparing the research paper or research article, then citation is most important there. If you don't give, or if you forget, if you purposefully don't give the citation or give the reference below your research paper, then it will be understood that your research paper or article it should be copied. तो इस तरीके से जब आप कोई रिसर्च पेपर या आर्टिकल लिखते हो और उसके नीचे जब किसी भी प्रकार का साइटेशन रेफरेंस नहीं देते हो, तब इस प्रकार के वर्क को कॉपीड वर्क कहा जाता है. और कॉपीड वर्क क्यों कहा जाता है? इफ वी डोंट गिव the citation, if we don't give the references below the article or research paper. So from this we can understand the importance of citation, importance of reference. Keep your morale high and be educated about plagiarism and ethical person. Okay, be an ethical person. So all these things are most important here. If we keep our morale high, then it is very little chance in front of us that we can't do anything. Okay, be educated about plagiarisms and be ethical person. Ethical person means conscious person. If we understand what is good and what is bad, then don't follow the bad path of anything, and we should follow the good path. Okay, so all these things are most important to avoid the plagiarisms.
And if you don't do bad things, as you know, the differentiation between what is good and bad, similarly teach your inner conscious that plagiarism is unethical and you should not make use of plagiarized content. Okay, so are you getting the point here, which is the most important? And there are so many activities we are conducting, and through that some incident happened with us that we copied someone else work, someone else information, someone else activities, then it is considered as plagiarism. So we always aware about that, and we should take care also about that, and we also tell to others to care about that. हमें तो इसकी केयर करनी ही चाहिए, लेकिन दूसरों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। तो इसके लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्लेगरिज्म, इसके संदर्भ में वर्कशॉप होने आवश्यक है। अदरवाइज नोबडी अंडरस्टैंड अबाउट दैट, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलने वाला है जब तक हम कोई वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस इसके संबंध में आयोजित नहीं करते हैं। ओके, तो जागृति कितना इम्पोर्टेंट है और जागृति कब होती है और कैसे होती है? तो थ्रू दिस एक्टिविटीज, सेमिनार, वर्कशॉप वगैरह वगैरह, इसके द्वारा ही एक्टिविटीज होती है, राइट। Keep your moral high and be conducted about plagiarism can be ethical person as in real life. You don't do bad things, as you know, differentiate between what is good and bad. Similarly teach your inner conscious that plagiarism is unethical and you should not make use of plagiarized content. Okay, तो प्लेगराइज कंटेंट हमें किस तरह से अवॉइड करने चाहिए, क्यों अवॉइड करने चाहिए, इसके लिए हमें ये इम्पोर्टेंट है। ओके, हाउ टू अवॉइड प्लेगराइज कंटेंट। तो प्लेगराइज कंटेंट हमें किस तरह से अवॉइड करने हैं? कलेक्ट योर सोर्स एंड रेफरेंस टुगेदर। ओके, सो टू अवॉइड द प्लेगरिज्म, source is most important. If we give the reference and citations below the article, below the research paper, then it is most important here. As we have already mentioned, there are cases when writers or students forget to refer to sources and they unintentionally plagiarize. Okay, so already I have told that there are two kinds of the plagiarism, intentionally and unintentionally. Okay, so if we are doing intentionally or unintentionally plagiarism, but both are considered as a crime. दोनों ही एक्टिविटीज आप यदि इंटेंशनली करते हो या अनइंटेंशनली करते हो, पर्पसफुली करते हो या विदाउट पर्पसफुली करते हो, तो लेकिन दोनों ही एक्टिविटीज प्लेगरिज्म कंसिडर होती है। ओके, तो इससे हमें बचने के लिए क्या करना आवश्यक है? तो इससे बचने के लिए हमें जो इसके संबंध में जो जानकारी है वह प्राप्त करना आवश्यक है। जैसे कोई बीमारी फैलती है, तो जब तक हम उस बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करते, अवेयरनेस नहीं बढ़ाते, तो लोगों में उसके प्रति जागृति नहीं निर्माण होती है और लोगों को भी पता नहीं चलता है कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, क्या करना आवश्यक है और क्या करना नहीं आवश्यक है। तो जागृति इसके संदर्भ में इम्पोर्टेंट होती है। तो ठीक इसी तरह से किसी भी गलत काम से बचने के लिए, गलत एक्टिविटी से बचने के लिए
हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो अवेयरनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. इट इज इजीली अवॉइडेबल इफ यू क्रिएट a list of references and link them to your outline parts. After you align sources with your H2 or H3 mark what need to be quoted, paraphrased, hyperlinked or included in the footers. Okay. तो रिसर्च आर्टिकल लिखते हो या रिसर्च पेपर लिखते हो या बुक्स लिखते हो, कोई भी आप काम करते हो तो फुटर के नीचे क्रेडिट देना आपको आवश्यक है. या गूगल इमेज यूज करते हो तो वहाँ पर भी आपको क्रेडिट देना आवश्यक है. और यदि आप क्रेडिट देते हो तो किसी ने आपके ऊपर क्लेम भी किया तो आपको उसकी पनिशमेंट नहीं होती, क्योंकि आपने उसका क्रेडिट उसको दिया है. और विदाउट क्रेडिट इफ यू आर यूजिंग समथिंग और समवन एल्स वर्क, then it is considered as a pure plagiarism and someone claim against that, and you should be punished for these activities. इसके लिए आपको पनिशमेंट भी हो सकती है. So planning is half the battle on. So if we will do the planning regarding these, then will half battle on. जब हम प्लानिंग करते हैं तो आधी लड़ाई हम पहले से ही जीत जाते हैं. जैसे प्रिवेंशन इज बेटर वे. किसी भी डिसीज या बीमारी फैलती है तो उसको रोकने के लिए प्रिवेंशन इज बेटर वे ऐसा माना जाता है. यदि हमसे और हमारे द्वारा प्लेगैरिज्म ना हो तो उसके लिए प्रिवेंशन ए बेटर मार्क है. और इसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए. ओके. कोट यहाँ पर दिया है. पहले तो कोट यानी कि क्या हमें समझ लेना चाहिए. तो कोट इज वर्ड यूज to describe the act of copying piece of text verbatim and inserting it into your writing. जब हम किसी का भी कोट यूज करते हैं तो इट शुड बी रिटन इन डबल इन्वर्टेड कॉमा. देन इट इंडिकेट दैट दिस इज द वर्ड ऑफ समवन एल्स. ये किसी के वर्ड है. ओके. ऐसा प्रतीत वहाँ पर होता है. और यदि हम डबल इन्वर्टेड कॉमा वहाँ पर यूज़ नहीं करते तो ये हमारे वर्ड है ऐसा वहाँ पर प्रतीत होता है. तो इसके लिए भी आपको वर्बेटियम प्लेगरिज्म का क्लेम हो सकता है. दिस टेक्स्ट शुड बी enclosed in quotation mark and correctly attributed to the original author. So you should also mention the name of original author there. If you are reading the newspaper daily, then there are many news in which you can find the quote of someone else. किसने क्या कहा. बहुत सारे प्रकार के कोट्स आपको न्यूज़पेपर में मिलते हैं रोज, क्योंकि आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो कोट का अर्थ हमें सहजता से वहाँ पे समझ में आता है. किसने क्या कहा ए डबल इन्वर्टेड कॉमा में वहाँ पर दिया जाता है. तो इससे इंडिकेट होता है कि वो वर्ड जो है यूज किए, जिसने ये कहा है उसका नाम भी नीचे दिया जाता है कोट. ठीक उसी तरह से हमें भी अपने रिसर्च वर्क में यदि किसी का कोट यूज करना है तो उसके नाम सहित वह यूज करना है और उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है. तो ये जानकारी जब आपको मिलती है तो आप उस तरह से एक्टिविटीज करना आवश्यक है. कोट sparingly only use quotes and when necessary to drive home a point or illustrate a specific example. When you include a quote in your writing, it is crucial to ensure that the content is original and accurately quoted.
So while we are writing the quote or someone statements by using the double inverted comma in quote, like a quote, then it indicates that this is the statement of someone else. Okay, and the name also you should mention there. When you include quote in your writing, it is crucial ensure that content is original. तो content जो होता है original consider होता है, and accurately quoted. Use quotation mark in the content and cite the source. जो सोर्स आप यूज करते हो उसको साइट करना आवश्यक है, यानी कि आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हो या रिसर्च पेपर लिखते हो तो उसके नीचे आपको कोट देना आवश्यक होता है. ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है. डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड द ऑथर्स नेम एंड डेट ऑफ पब्लिकेशन इन वन सेंटेंस. फॉर कंटेंट यू कैन सिंपली आइडेंटिफाई द सोर्स नेम, और सोर्स नेम भी वहां पर देना आवश्यक होता है. ओके, सो देयर आर मल्टीपल साइटेशन स्टाइल फॉर साइटेशन, और अलग अलग साइटेशन स्टाइल भी दी जाती है साइटेशन के लिए. जैसे एपीए है और अलग अलग स्टाइल है, उसका यूज़ आप कर सकते हो. उसके लिए आपको एपी स्टाइल भी सीखनी होगी, साइटेशन स्टाइल. फर्दर लेसन में हम वो सीखने वाले हैं. थर्ड पॉइंट है पैराफ्रेज. पैराफ्रेज इज अ वे ऑफ रीराइटिंग समवन एल्स टेक्स्ट इन अवर ओन वर्ड्स. पैराफ्रेज यानी कि क्या, किसी ने किसी भी टॉपिक पर लिखा है तो सेम टॉपिक हम हमारे ओन इंटरप्रिटेशन से हमारी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करते हैं. ओके, so paraphrase is nothing but the someone else writing. We try to write in our own language according to our own interpretation. तो हमारे own interpretation के according हमारी own language में दूसरों का टॉपिक हम लिखने का प्रयास करते हैं, तो उसे पैराफ्रेज कहते हैं, रीराइटिंग. ओके, तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरे ने कुछ लिखा है और उसका यूज़ हमें हमारे वर्क में करना है, रिसर्च वर्क में, एजुकेशनल वर्क हो, किसी भी प्रकार का वर्क हो, कमर्शियल वर्क हो, तो हम उसमें हमारा ओन इंटरप्रिटेशन डालकर उसको चेंज करके वो हमारा है ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो दूसरे व्यक्ति ने लिखा होता है तो उसकी जो आइडियाज़ होती है, उसकी आइडिया को छोड़ के हम जब लिखने का प्रयास करते हैं तो होता नहीं. तो यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट है, तो कभी भी हमें हमारा जो वर्क है वो किसी का वर्क या हमारा वर्क करके हम दिखाने का प्रयास करते पैराफ्रेज करके, तो ये गलत बात है. दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज अ प्लेगरिज्म थिंग्स. ओके, सो वी शुड अवॉइड दिस, ये हमें दूर करना है. द बेस्ट वे टू पैराफ्रेज, सो यूज पैराफ्रेज व्हेन you want to avoid plagiarism, as a simply copying large chunk and text from another source can get you into trouble. However, by reading attentively and rewriting the information in your own words, you will avoid plagiarism. Better understand the material and diversify your knowledge about the topic. Okay. The best way to paraphrase
is to take the crucial points of source and rewrite them in your own words without changing their meaning. Indeed, it takes a bit of practice, but it's essential to do if you want to avoid plagiarism accusations. तो इसलिए हमें पैराफ्रेज करते समय जो ओरिजिनल आइडिया है उसको चुराना नहीं है, और पैराफ्रेज करते समय उसका नाम भी वहाँ पर मेंशन करना है. द बेस्ट वे टू पैराफ्राइज इज टू टेक क्रूशल पॉइंट आपको वहाँ से लेना है ऑफ द सोर्स एंड रीराइट देम इन योर ओन वर्ड विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग. उसका मीनिंग वहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए. तोड़ मरोड़ कर आपको कुछ नया बनाने की कोशिश नहीं करनी है. जो ओरिजिनल मीनिंग है, जो ओरिजिनल आइडिया, उसको टच नहीं होना चाहिए, और उसमें चेंजेस करके आप उसको लिखने का प्रयास कर सकते हैं, और जिसने वो लिखा है उसका क्रेडिट वहाँ पर आपको देना है. Indeed, it takes a bit of practice, but it's essential do if you want to avoid plagiarism accusations. तो इस तरह से आप plagiarism की एक्टिविटीज़ को अवॉइड कर सकते हो, और इसके लिए ये पैराफ्राइज लिखते समय आपको ये केयर करनी होगी. बट इफ़ यू यूज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइंडिंग्स, research, academic paper, etc. mention the primary source of data or information. तो फोर्थ यहाँ पर है गिव क्रेडिट टू योर सोर्स. When you write, it's vital to give credit where it's due. It is especially true when you are borrowing someone else's word or idea. जब आप खुद लिखते हो, रीराइट करते हो, तो आपको उसका क्रेडिट देना आवश्यक है, और किसी का स्टेटमेंट आप लेते हो, किसी का पैराफ्रेज करते हो, तो वहाँ पे भी आपको क्रेडिट देना आवश्यक है. एंड इफ यू आर अनश्योर वेदर समथिंग नीड्स अ साइटेशन, इट्स ऑलवेज बेटर to be safe than sorry, and one anyway, and then your readers can decide for themselves if the information is worth further exploration. Okay, so you should add a citation when an idea is similar to sources material but not identical. तो इस तरह से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि साइटेशन कितना इम्पोर्टेंट है, और उसके संदर्भ में जो भी जानकारी है वह हमें प्राप्त करनी है, ताकि फ्यूचर में हमसे कोई गलती ना हो, और प्लेगरिज्म जैसी जो गंभीर एक्टिविटीज़ है लिटरेचर में या रिसर्च में, उसका क्लेम हमारे ऊपर ना आए. तो अवेयरनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. प्लेगरिज्म एक्टिविटीज़ हमारे द्वारा न हो, इसलिए हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में अवेयर रहना है. इट कैन बी ईजी टू लूज ट्रैक ऑफ सोर्सेज वाइल राइटिंग. दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड all the relevant information, author name, date, publication, so on in your citation. तो हमेशा हमें जो सोर्सेस होते हैं उसके ऑथर नेम, डेट ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ पब्लिकेशन, जिसका भी कॉपीराइट उस एक्टिविटीज़ पे है, उसके बारे में हमें खबरदारी लेना आवश्यक है. 7th पॉइंट यहाँ पर दिया है, add your unique perspective to existing content and story. Okay, there are so many people, they are writing something in their field, they are doing something in their field, subject, discipline, but sometimes they don't get time to create something new. Sometimes they don't think like that to do same thing. So at that time what they will do, they will copy
the work from somewhere else, and they are use their own purpose for commercial purpose or non-commercial purpose, for getting the name and fame, okay, for getting the benefit and advantages, okay. So we should develop our perspective, okay. The internet is full of blog, millions of new articles are published daily across digital platform, and so in this competitive environment you should decorate the digital world with your unique knowledge and expertise. That is what blog are about. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भी हर जगह जहाँ जहाँ पर हम हमारा लिटरेचर पब्लिश करते हैं तो वहाँ पर हमें केयर करनी चाहिए किस तरह से हम हमारा आर्टिकल या इंफॉर्मेशन या वर्क पब्लिश कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक. So use plagiarism checker. So next advice you given, plagiarism checker you should use there, okay. So plagiarism checker work scanning your text and comparing to it database of web pages and publication, highlighting passages that appear similar to the other text. While there are distinction between the plagiarism checkers qualities, it is always good idea to run your text through one before submitting the product. It will help you avoid any accidental instances of plagiarism, okay. तो प्लेगरिज्म अवॉइड करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारी टिप्स यहाँ पर बताए, और इन सब को आपको ध्यान में रखते हुए प्लेगरिज्म से कैसे अवॉइड आप कर सकते हो ये याद रखना है. इट इज़ ऑलवेज गुड आइडिया टू टर्न योर टेक्स्ट थ्रू वंस बिफोर सबमिटिंग द प्रोडक्ट. Where you want to submit your product, at that time before you can check whether it is original or not, whether it is copied or free from the copyright. Then this will help to avoid the consequences of plagiarism. तो ये हमें consequences of plagiarism से avoid कर सकते हैं. कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे जगहों से मटेरियल लेते हैं, उसका ऑन इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, लेकिन कोट कहाँ पे छूट गया है, पैराफ्राइज सही तरीके से हुआ है या नहीं, क्रेडिट हमने दिया है या नहीं, ओके. और सब जो वर्क है वह हमने प्लेगरिज्म चेकर के द्वारा चेक किया है या नहीं, इस सारी बातें हम करना भूल जाते हैं. और जल्दी करने में क्या होता है, हम तुरंत वो प्रोडक्ट भेज देते हैं सामने वाले को. आपको किसी कॉन्फ्रेंस में रिसर्च आर्टिकल भेजना है, सेमिनार में भेजना है, या डेटाबेस को भेजना है, ई जर्नल को भेजना है, जर्नल को भेजना है, इसका विचार हम वहाँ पर नहीं करते हैं, ओके. तो इस तरह से
तो इस तरह से सभी जो एक्टिविटीज़ है यह हमें चेक करना आवश्यक है, और इफ़ यू आर फॉलो ऑल these स्टेप्स then you can avoid the plagiarism on your literatures, on your work. Consequence of plagiarism, प्लेगरिज्म के क्या परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी. There are severe consequences of plagiarism, but we always ignore on this. हम हमेशा इग्नोर करते हैं इस सीवियर कॉन्सिक्वेंस परिणामों पर. कौन से परिणाम है, जैसे कि एकेडमिक प्रोबेशन आपका रुक सकता है, फेलियर ऑफ दिस द असाइनमेंट, आपकी जो असाइनमेंट कैंसिल हो सकती है, फेलियर ऑफ द कोर्स, सस्पेंशन, डिसमिसल फ्रॉम प्रोग्राम्स और इंस्टीट्यूशन. एडिशनल यू कैन सीरियसली डैमेज योर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल रेपुटेशन. Plagiarism isn't limited to academic writing. It also possible plagiarize and creative writing and online content. तो जैसे if we are working or you are working in the field of academic field or research field, in both field the consequences will be take place. तो गंभीर परिणामों को आपको सामना करना पड़ता है. जैसे कि एकेडमिक फील्ड में आप काम करते हो तो आपकी डिग्री कैंसिल हो सकती है, आपका प्रमोशन रुक सकता है, ओके. और रिसर्च फील्ड में आप काम करते हो तो आप पीएचडी एमफिल डिग्री करते हो तो उस पर बैन लग सकती है. ये सभी चीज़ें यहाँ पर होती है. While nobody owns an idea, plagiarism is in fiction typically means using another's author's characters, setting or specific plot or concept without their permission. तो प्लेगरिज्म कब कहाँ हो सकता है, फिक्शन आप पढ़ते हो या फिक्शन पर कोई ड्रामा तैयार करते हो तो उसमें जो सेटिंग है, कैरेक्टर्स है, प्लॉट है, कंसेप्ट है, तो विदाउट ऑथर की परमिशन हम उसका यूज नहीं कर सकते, नाम भी यूज नहीं कर सकते. इतना कॉपीराइट का नियम स्ट्रिक्ट है. लेकिन हम कैजुअली कहाँ पे भी इसका यूज़ कर देते हैं, हमें पता भी नहीं होता, लेकिन जाने अनजाने में आपसे गलती हो जाती है. और जब ये नेटिव जो ऑथर होता है उस एक्टिविटीज़ का उसके ध्यान में आता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होगी तो वो आप पर क्लेम नहीं करेगा कि जाने तो इन्होंने कुछ अपने सेल्फ के लिए, स्वार्थ के लिए यूज़ नहीं किया और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया. और यदि आप ऐसा करते हो तो फिर उसका क्लेम आप पर आ सकता है. So when it comes to online content like blog and posts and infographics, you can avoid plagiarism by simply asking original creators for permission to repost their content, and if they agree, making sure you credit them. तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हम कंटेंट इंटरप्रेट करते हैं. ऑफलाइन में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता. ऑफलाइन में नाम दिया होता है, बुक पब्लिश होता है, आर्टिकल पब्लिश होता है, जर्नल पब्लिश होता है, तो उसमें सभी प्रकार के नाम और सभी प्रकार के जो ऑथर होते हैं उनको क्रेडिट दिया जाता है. लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है. ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म वो बहुत बड़ा है, इसलिए किसी को पता नहीं चलता कि किसका आर्टिकल कौन यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन कॉपी कौन पेस्ट कर रहा है, ओके. लेकिन ऑनलाइन से ये भी पता चल जाता है कि ओरिजिनल आर्टिकल किसका है, सॉन्ग किसका है, वीडियो किसका है, ऑडियो किसका है. तो ये सभी जानकारी हमको यहाँ पर होनी आवश्यक है. तो हम प्लेगरिज्म से
बच सकते हैं। अदरवाइज प्लेगेरिज्म हमारे द्वारा हो सकता है और हम पर कॉपीराइट का एक्शन हो सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत। तो इससे हमें सावधानी बरतनी है। और जो नाम और फेम हमने कमाया होता है, नेम और फेम, उसको दब्बा लग सकता है। तो आप यदि बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हो अपने फील्ड में, तो आपका एक नेम और फेम तैयार होता है, वहाँ पर नाम तैयार होता है। और यदि ऐसे समय में ऐसी एक्टिविटीज़ आपके द्वारा हो जाती है जाने अनजाने में, तो आपके करियर को ये बर्बाद कर सकती है। ऐसा एक्चुअल लाइफ में बहुत जगह पे हुआ है। ऐसे बहुत सारे फेमस ऑथर है जो बुक्स लिखते हैं, जर्नल्स में आर्टिकल लिखते हैं, पेपर में न्यूज़ आर्टिकल लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो जर्नल में आर्टिकल लिखते समय उनका नाम और फेम हो जाता है, लेकिन कभी कभार उनके ऐसी गलती हो जाती है कि वो अपना नाम भूल जाते हैं या किसी का नाम डाल देते हैं। किसी की प्रसिद्धि की उनको इतनी प्रसिद्धि उन पर इतनी हैवी हो जाती है कि उनको समझ में नहीं आता कि आप प्रसिद्ध तो हमें रहना ही है, इस कंपटीशन में हमें ज़्यादा देर टिकना है। तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरों का भी वो लिटरेचर या वर्क अपने नाम से प्रसिद्ध करते हैं और कुछ पर्पसफुली दूसरों का जो लिटरेचर है, वर्क है, चुराने लग जाते हैं और अपने नाम से फेमस कर देते हैं। ओके, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उसके अगेंस्ट कौन सा राइट है, ये यहाँ पर हमें देखना है। So law against intellectual property rights. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यहाँ पर हमें ये सिखाता है हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर राइट। और प्लेगेरिज्म ये हमें सिखाता है कि हाउ वी कैन अवॉइड द प्लेगेरिज्म। ओके, लेकिन यहाँ पर एक प्राइवेसी एक्ट जो होता है वह इस लॉ के अगेंस्ट काम करता है। सो देर आर मेनी लॉज अगेंस्ट प्लेगेरिज्म, सो दे आर मेंशन बिलो, उनका मेंशन बिलो इन सेक्शन 57 of the Indian Copyright Act in 1957. Author have the right to claim authorship of their work among their other things. It grants authors the special right to be attributed for their work. The statute recognizes the right to attribute along with the right not to be plagiarized. तो प्लेगेरिज्म एक्ट के तहत ये जो सेक्शन है 57 ऑफ द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957, ये अपोजिट काम करता है, क्योंकि ऑथर हैव द राइट टू क्लेम एन ऑथरशिप देयर वर्क अमंग अदर थिंग्स। तो अलग जगह पे आप देखते हो कि ऑथर को, जो ओरिजिनल ऑथर होता है, उसको अपने वर्क पे यदि कोई चुराता है, उसका कॉपीराइट ले लेता है या उसका लिटरेचर चुराता है या इंफॉर्मेशन चुराता है, तो उस पर वो क्लेम कर सकता है। इट ग्रांट द ऑथर स्पेशल राइट, इसको ऑथर का स्पेशल राइट कहा गया है, टू बी एट्रीब्यूट फॉर देयर वर्क। द स्टैट्यूट रिकॉग्नाइज द राइट एट्रीब्यूशंस एनालॉगस टू द राइट नॉट टू बी प्लेगराइज्ड। सेक्शन 63 Intellectual Property Act in 1957, convicted infringer is liable to imprisonment between 6 months to 3 years. यदि सेक्शन 63 के अंतर्गत आप दोषी पाए जाते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट 1957 के अंतर्गत तहत, तो आपको 6 मंथ टू 3 इयर्स की सज़ा हो सकती है, पनिशमेंट हो सकती है। फाइन बिटवीन 50,000 टू लाख, 50,000 से 2 लाख तक आपको जुर्माना हो सकता है। So University Grant Commissions or UGC has provided a certain set of guidelines that need to be followed by universities
in order to prevent plagiarisms in academic activities. और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा भी एक गाइडलाइन पब्लिश हुई है कि जिसके द्वारा आप प्लेगरिज्म एक्टिविटीज़ को बैन कर सकते हैं। और यूजीसी के द्वारा भी एक गाइडलाइन प्रसिद्ध हुई है ताकि रिसर्च में किसी भी प्रकार की कॉपी ना हो। ओके, तो इसके लिए ये यूजीसी के द्वारा गाइडलाइन पब्लिश की गई है। ओके, सो क्वेश्चन एंड आंसर रिगार्डिंग द प्लेगरिज्म व्हाट। तो प्लेगरिज्म चेकर क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ टूल, इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। विद द हेल्प ऑफ दिस you can check your own work whether it is copyright or whether it is free from the copyright. Percentage it will show there. An online plagiarism detector, it is called the online plagiarism detector, sort through online freely accessible source and compares them to your academic work and as well as research work. एकेडमिक वर्क और रिसर्च वर्क में हम इसका यूज करते हैं। कुछ पेड वर्जन है और कुछ फ्री वर्जन भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। योर प्लेगरिज्म रेट शुड बी अंडर 5%। तो हमारा प्लेगरिज्म जो रेट है वो 5% के अंतर्गत होना चाहिए। और इसके अबव यदि आपका प्लेगरिज्म रेट जाता है तो यू आर कम अंडर द प्लेगरिज्म, आप प्लेगरिज्म के तहत गुनहगार साबित होते हो। Few pages in your plagiarism report is good sign. It means that you are reference correctly and haven't accidentally plagiarized anything. यदि आपका जो आर्टिकल एक गुड साइन करता है और इसका मतलब आपने सही तरीके से रेफरेंस दिया है, साइटेशन किया है, पैराफ्राइज किया है। और जब आप प्लेगरिज्म टूल के द्वारा ये चेक करते हो तो एक गुड साइन होता है। और इसका मतलब आप कोट पैराफ्राइज और साइटेशन आपने अच्छी तरह से दिए होते हैं, क्योंकि उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की होती है और उसके बारे में अवेयरनेस आपको होता है, इसलिए ये मिस्टेक आपसे नहीं होती है। और प्लेगरिज्म जो चेकर होते हैं उसका आपको एडवांटेज होता है। व्हाट हैपन इफ़ यू प्लेगराइज, आपने यदि प्लेगराइज किया तो क्या हो सकता है? आपको पता है जैसे कि आपको फिजिकल पनिशमेंट और इकोनॉमिकल पनिशमेंट दोनों प्रकार की पनिशमेंट हो सकती है। ओके, तो फिजिकल पनिशमेंट में देखा हमने कि 6 मंथ टू 2 इयर्स की सज़ा आपको हो सकती है। और हमने देखा कि 50,000 फ्रॉम 2 लाख रुपीज़, 50,000 से 2 लाख तक आपको जुर्माना बैठ सकता है। ओके, और 6 मंथ टू 3 ईयर तक आपको सज़ा भी हो सकती है। तो इसमें दोनों प्रकार की जो शिक्षा है, पनिशमेंट है, उसका प्रावधान किया गया है, फिजिकल एज वेल एज इकोनॉमिक। सो व्हाट हैपन यू प्लेगराइज if you are accused of plagiarism and it's found to be true, then your academic paper or thesis will be automatically be failed. तो आपका academically और research जो आप जिस फील्ड में काम करते हो तो दोनों का आपका नुकसान हो सकता है। और नुकसान किस तरह का हो सकता है? आपकी डिग्री कैंसिल हो सकती है, आपको बैन किया जा सकता है, आपको डिबार किया जा सकता है एग्ज़ाम से वगैरह। ओके, आपकी रिसर्च पीएचडी डिग्री जो भी है वो बैन होल्ड की जा सकती है। यू कैन आल्सो बी stripped of your titles and in extreme cases plagiarism is a criminal offenses. तो plagiarism it is a kind of consider offense, criminal offense। तो एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है, क्राइम होता है और इससे हमें हमेशा बचना चाहिए। This is why it is smart to play it to save and run your academic work through plagiarism detectors before handing it in.
तो इस तरीके से हमें प्लेगरिज्म डिटेक्टर के द्वारा हमारी प्लेगरिज्म जो एक्टिविटीज़ है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। सो हाउ वी कैन अवॉइड द प्लेगरिज्म। तो जैसे कि हमने देखा अर्लियर टॉपिक में कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट थे, कोट अच्छी तरह से करना चाहिए, पैराफ्रेज अच्छी तरह से करना चाहिए, साइटेशन के बारे में हमें खबरदारी लेनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ हम वहाँ पर कर सकते, क्रेडिट वहाँ पर हमें देना चाहिए ओरिजिनल ऑथर का। ओके, ये सभी जानकारी यदि हमें होती है तो हम उसके संदर्भ में खबरदारी लेते हैं। To avoid plagiarism, you need to ensure everything you will write in your own words, and if you are using someone else's ideas, quoting them, for example, you need to be ensure that you are properly cited or referred the original author. किसी का भी कोट यूज करते, पैराफ्रेज करते तो आपको साइटेट करना अच्छी तरह से, रेफर्ड करना अच्छी तरह से है, उसका प्रॉपर नेम वहाँ पर देना आवश्यक होता है। व्हाट आर द थ्री टाइप ऑफ प्लेगरिज्म। टाइप्स कौन थे, जैसे कि हमने देखा कि प्लेगरिज्म के टाइप्स कौन थे हैं। तो यहाँ पर दिया है प्लेगरिज्म ऑफ टेक्स्ट, प्लेगरिज्म ऑफ आइडियाज, प्लेगरिज्म ऑफ कोटेशंस, यूज ऑफ मेटाफोर्स एंड आइडियम्स विदाउट साइटेशन, ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज वर्क्स विदाउट साइटेशन। ओके, तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के प्लेगरिज्म के प्रकार हो सकते हैं और हमारे द्वारा हो सकते हैं। जो मल्टीमीडिया होता है, जब हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं उसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, ओके, कार्टून्स वगैरह सभी प्रकार के जो मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स है, जब हम डाउनलोड करते हैं तो विदाउट कॉपीराइट है या कॉपीराइट है, ये हमें वहाँ पर चेक करना आवश्यक है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। प्लेगरिज्म के कौन से प्रकार है और इसमें थोड़ा चेंजिंग इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया गया है। हमने इससे पहले अलग प्रकार के प्लेगरिज्म टाइप्स देखे। नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म टाइप्स। ग्लोबल प्लेगरिज्म मीन्स passing off an entire text by someone else as your own work. If we are copied someone's works, whole text, then it will consider as a global plagiarism. Verbatim plagiarism means directly copying of someone else's word. Verbatim means directly copy of someone else's work without giving the quotation. Paraphrasing plagiarism means rephrasing someone else's ideas to represent them your own. जब दूसरों की आइडिया हम हमारी आइडिया करके प्रेजेंट करते हैं तो उसको पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म कहते हैं। पैचवर्क प्लेगरिज्म मीन्स स्टिचिंग टुगेदर पार्ट्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेस टू क्रिएट योर टेक्स्ट। तो हम क्या करते हैं, आपको यदि असाइनमेंट लिखने को कहा गया तो आप अलग अलग रेफरेंस बुक कलेक्ट करते हो और उसको आधा एक बुक का पार्ट, आधा एक बुक का पार्ट, ऐसा करके बहुत सारे टॉपिक आप जमा करते हो और उसको अपना टॉपिक बनाने का प्रयास करते हो। तो उसको पैचवर्क प्लेगरिज्म कहते हैं। पैचिंग करने का प्रयास आप यहाँ पर करते हो। सेल्फ प्लेगरिज्म मीन्स रिसाइकलिंग योर ओन पास्ट वर्क। यदि भूतकाल में आप किसी आइडिया पर टॉपिक पर लिखते हो न्यूज़पेपर में या आर्टिकल में या बुक में और फिर से उसका रीयूज करते हो किसी दूसरे जगह पे, किसी दूसरे पब्लिकेशन में, पब्लिशर के पास, तो उसको सेल्फ प्लेगरिज्म कहा जाता है। तो विथ एग्जांपल यहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है और यू कैन गेट डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। So this topic has been finished here. Okay, now we are going to discuss
our new topic. What is the new topic? Right to Information Act. It is called RTI also. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, दो प्रकार के एक्ट है और उसका कंपैरेटिव स्टडी हमको यहाँ पर करना आवश्यक है. ओके. I will rub this. RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ATA. दोनों एक्ट के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त करनी है. ओके. So right to information act is very important topic for the in this lecture. We will provide detailed information regarding the RTI Act, which is often seen in news, thus making it a very probable topic to be asked in the UPSC preliminary or the UPSC main exam. Okay. तो ITR किसको कहते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, कैसे वो लागू हुआ, किस जगह पे हम उसका यूज करते हैं, फेयर ITR का यूज कैसे होता है, अनफेयर ITR का यूज कैसे होता है. ITR लोकशाही में एक वेपन लोगों को दिया गया है, लेकिन उसके बारे में उसके ड्रॉबैक क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, एडवांटेज क्या है, यहाँ पर हमें जानना आवश्यक है. ऑब्जेक्ट ऑफ द RTI मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है. द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज टू एम्पावर द सिटीजन्स, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी in the working of the government, contain corruptions, and make our democracy work for the people in real sense. Okay. We are the people are living in democracy, and how the democracy will be made. The bureaucracy is there, then all the peoples which are related to the bureaucracy, and the combination of parliament in which two assemblies there, Lok Sabha and Rajya Sabha. By combination both it will make the parliament. There are so many politicians, those who are working in the field of democracy, and at that time all the work should be done without biasness, without corruptions. Okay. But this not happen in any kinds of democracy. किसी भी लोकशाही में बहुत सारे घटक एक होते हैं, उसमें पॉलिटिशियन अलग है, ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाही बोलते हैं वो अलग है. ओके. और मंत्री जिसे बोलते एक्चुअल जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो अलग होते हैं, और पॉलिटिशियन अलग होते हैं, गवर्नमेंट अलग होती है. तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन वो लोकशाही में होता है, लेकिन हर जगह पे ऐसी अपेक्षा होती है कि जो काम होता है वह अच्छी तरह से हो, विदाउट बायसनेस हो, विदाउट करप्शन हो, उस काम स्पीडली हो. लेकिन
दुनिया का यदि हम विचार करते हैं तो बहुत सारे देशों में लोकशाही हम देखते हैं, लेकिन वहाँ पे सभी प्रकार के काम अच्छी तरह से होते हैं ऐसा नहीं है। तो दोनों प्लस और ड्रॉबैक डेमोक्रेसी के है। डेमोक्रेसी अच्छी भी है और उसका गलत इस्तेमाल भी कुछ लोग उठाते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रकार है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये अच्छा है, लेकिन लोगों ने पसंद किया है, लोगों के द्वारा प्रस्तावित हुआ है, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक भी है। तो उसको ओवरकम करने के लिए, उस पर मात करने के लिए आईटीआर का निर्माण हुआ है। जैसे कि पूरे दुनिया को यदि हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो एक कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, ऐसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फ्लो चार्ट के माध्यम से ये आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। I will rub this. Capitalism, okay, then democracy, और socialism, राइट। तो इस तरीके से कैपिटलिज्म में कुछ प्लस पॉइंट और ड्रॉबैक होते हैं। ओके। और सोशलिज्म में प्लस पॉइंट भी होते हैं। ओके। और इसमें भी सेम उसी तरह से होता है। और दुनिया का यदि हम विचार करते हैं तो देर आर सो मेनी कंट्रीज कैपिटलिज्म इज एग्जिस्ट देयर, एंड इफ वी आर कंसिडर सोशलिज्म, देर आर मेनी कंट्रीज देयर सोशलिज्म इज एग्जिस्ट देयर। कुछ देशों में कैपिटलिज्म है, कुछ देशों में सोशलिज्म है। ओके। लेकिन जब हम हमारे इंडिया का विचार करते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हुआ है डेमोक्रेसी के रूप में। ओके। कैपिटलिज्म, ओके, और सोशलिज्म, और उसके कॉम्बिनेशन से हमने डेमोक्रेसी तैयार की है। लेकिन डेमोक्रेसी है सबको अच्छा लगने वाला शासन प्रकार है, सभी को इसमें फ्रीडम मिलता है, बहुत फ्रीडम मिलता है। लेकिन फ्रीडम को लोग स्वैराचार समझने लग जाते हैं, या कुछ भी करने लग जाते हैं, या कुछ नहीं किया तो भी कुछ नहीं होता है, ऐसी उनकी एक मानसिकता तैयार हो जाती है। तो दोनों तरीके से लोग सोचते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का ड्रॉबैक होता है। ब्यूरोक्रेसी इसमें क्या करती है, लोग जब काम करने के लिए नौकरशाह के पास जाते हैं, कोई ऑफिसर होगा किसी भी ऑफिस में, तो समय पर उनका काम नहीं करते, या काम करने के लिए पैसा लेते हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करके संबंधित व्यक्ति को पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और बाद में उनसे जो चाहे वो काम कर लेते हैं। तो इस तरह के ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम हो सकते हैं, डेमोक्रेसी में हमेशा ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आरटीआई, कुछ तो टेक्निक होना चाहिए कि सब पे अंकुश हो, ओके, सब पर कंट्रोल हो, टू अवॉइड द ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेसी। टू अवॉइड
ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी क्रोसी। तो इसके लिए कंट्रोल होना जरूरी होता है, कंट्रोल। और कंट्रोल किसके माध्यम से होता है? फिर आरटीआई के माध्यम से। ओके, यहाँ पर दिया है, लिखा है नीचे, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन आप लिख सकते हैं, इस बॉक्स के नीचे आरटीआई लिखा है। तो लोकशाही में ऐसे गलत प्रकार हो सकते हैं, गलत बातें हो सकती है, जिस पर अंकुश लाने के लिए कुछ तो टेक्निक का यूज करना आवश्यक होता है, कुछ तो प्रोसीजर का यूज करना आवश्यक होता है। इसके लिए आरटीआई का जन्म हुआ, ताकि ब्यूरोक्रेसी अपना अच्छा काम कर सके, पॉलिटिकल जो लीडर है वो अपनी मनमानी ना कर सके, कोई भी अधिकारी एक अपने बंधन में रहने के लिए, लिमिटेशन में रहने के लिए आरटीआई का अंकुश वहाँ पर रखा गया। जैसे कि एक हाथी होता है और हाथी का बल आपको पता है, और इसको कंट्रोल करना इंसान के हाथ में नहीं होता, उसकी बस की बात नहीं होती है। लेकिन जो उसका ऐरावत होता है, ऐरावत रत्नथोर, जो उसका उस पर बैठता है, तो उसको ये आर्ट होती कि हाथी को कैसे कंट्रोल किया जाए, उस अंकुश का यूज करता है। ओके, तो अंकुश का यूज करके वह हाथी को कंट्रोल में लाता है। ठीक उसी तरह से लोकशाही एक बड़ा समंदर है, और उसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, जैसे कि पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेसी है, और अलग प्रकार के, और इसमें कैपिटलिस्ट है, भांडवलवादी लोग हैं। ओके, तो इनकी जो शक्ति होती है वो बड़ी होती है, और ऐसे लोगों के द्वारा गलत काम ना हो, बायसनेस ना हो, काम सही तरीके से हो, समय पर हो, इसके लिए इन लोगों पर अंकुश लाना आवश्यक है। तो इसके लिए आरटीआई का निर्माण हुआ, आरटीआई का जन्म हुआ। तो आरटीआई के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? आरटीआई के द्वारा ऐसे लोगों पर हम अंकुश ला सकते हैं, कंट्रोल ला सकते हैं, उसका सही इस्तेमाल करके। लेकिन जब हम देखते हैं कि आरटीआई का गलत इस्तेमाल भी होने लगता है, सही इस्तेमाल की जगह पे लोग आरटीआई डालते हैं दूसरों को ब्लैकमेल करने के लिए, दूसरों से पैसा या खंडनी वसूल करने के लिए। तो यहाँ पर ये गलत, अनफेयर यूज होता है आरटीआई का, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो आरटीआई का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे, उसके निर्माण के पीछे क्या पर्पज़ है, क्या ऑब्जेक्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए उसका सही इस्तेमाल हमें करना है। और जब हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो आरटीआई का जो मेन पर्पज़ है वो सफल होता है। और जो लोकशाही में गलत बातें, गलत चीज़ें होती है, रॉन्ग प्रैक्टिस होती है, उस पर हम आरटीआई के द्वारा कंट्रोल ला सकते हैं, यदि उसका हमने सही इस्तेमाल किया तो, और करते हैं तो इस तरीके से आरटीआई का मेन पर्पज़ क्या है, मेन हेतु क्या है, इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। इसके द्वारा आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि जब ये फ्लो चार्ट आप देखोगे तब आपको आरटीआई का जो मेन पर्पज़ है वो समझ में आएगा। सो हियर वी विल टेक शॉर्ट ब्रेक एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अगेन। थैंक यू। RTI generated, how we can use the ITR, and what is the purpose behind that, what is the objective behind that, while we are creating the RTI Act in our India. Okay,
सो बैकग्राउंड आई हैव टोल्ड हियर, हमने आपको आरटीआई का बैकग्राउंड बताया, वो क्यों यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, उसका पर्पज़ क्या है मेन। तो ये पर्पज़ हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की। यू शुड रिमेंबर दिस। The basic object of the Right to Information Act is to empower citizens and promote transparency, accountability in the working of the government, contain corruptions, and make our democracy work for the peoples in real sense. So if we are make the definition, there is a famous definition is of democracy is for the people, by the people, of the people, that is called the democracy. And if we don't use the democracy for the advantage of people, for the beneficial of the people, then what is the use of democracy? Because India is accepted democracy administration because it is a all inclusive types if we are compare than capitalism and socialism. यदि हम डेमोक्रेसी की तुलना कैपिटलिज्म या सोशलिज्म से करते हैं तो दोनों में जो ड्रॉबैक है उसको नज़रअंदाज करने के लिए, उनको अवॉइड करने के लिए हमने डेमोक्रेसी दोनों का कॉम्बिनेशन जो डेमोक्रेसी में होता है वह चूज किया है। लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी चूज करने के लिए भी जैसे डेमोक्रेसी के अपने एडवांटेज है, अपने फ़ायदे हैं, ठीक उसी तरह से डेमोक्रेसी के कुछ अपने डिसएडवांटेज भी है, ड्रॉबैक भी है, तो उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो उनको फेस करने के लिए, उससे इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि एक व्यक्ति होता है और एक व्यक्ति में दोनों प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है, अच्छे गुण और बुरे गुण। इसका मतलब बुरे गुण के लिए हम उस व्यक्ति को निगलेक्ट करते या रिजेक्ट करते हैं या करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हमें अच्छे गुण सहित और बुरे गुण सहित उस व्यक्ति का स्वीकार करना चाहिए और हमें ये प्रयास करना चाहिए कि उस व्यक्ति में जो अच्छे गुण है और जो बुरे गुण है, अच्छे गुण तो अच्छे ही है लेकिन जो बुरे गुण है वो किस तरह से अच्छे गुण में कन्वर्ट हो सकते हैं या बुरे गुण उस व्यक्ति की कम हो सकते हैं, इसके लिए हमें प्रयास करना आवश्यक होता है। ठीक उसी तरह से हमने और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, भारत के द्वारा डेमोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन चूज किया गया है, लेकिन व्यक्ति की तरह डेमोक्रेसी के कुछ अच्छे गुण है और कुछ बुरे गुण है, जैसे कि एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो हमें लोकशाही का त्याग नहीं करना चाहिए। ये शासन प्रकार अच्छा है, सब लोगों को सूटेबल है और सूट होता है, सब लोग इसकी चाह करते हैं। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट प्रयास क्या करना होगा, डेमोक्रेसी में जो ड्रॉबैक होते हैं डेमोक्रेसी के, जैसे कि करप्शन है, बायसनेस है, ओके, और लेजीनेस इन वर्क, डिले इन वर्क, ओके, ये जो बुरे गुण है डेमोक्रेसी के, इस पर हमें काम करना चाहिए। तो इस पर कंट्रोल लाने के लिए, ये इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई तो एक हथियार हमें ऐसा चाहिए कि जिसके ज़रिए हम ये सब ड्रॉबैक कम कर सकते हैं। तो इसके लिए आरटीआई को चुना गया। ओके, तो आरटीआई के द्वारा हम इन सभी ड्रॉबैक पर जो डेमोक्रेसी के है उस पर हम नियंत्रण ला सकते हैं, कंट्रोल ला सकते हैं और एक अच्छा वातावरण लोकशाही के लिए तैयार कर सकते हैं। इसीलिए आरटीआई की उत्पत्ति की गई, आरटीआई एक्ट का निर्माण किया गया। ओके, सो with the help of this RTI we should give the empower to the citizens, those people who are living in the country. Okay, and what kind of the empower is given to the people? With the help of RTI he can demand any kinds of information from the bureaucracy or from any kinds of office which are registered under the Government Act.
जो भी गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सभी प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर हुई है, सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन, चाहे वो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन हो, इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन हो, स्टेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, कंट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो, हम वो डिमांड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक प्रकार का गवर्नमेंट पर अंकुश रहता है, ब्यूरोक्रेसी पर अंकुश रहता है, और जो लोकशाही में रॉन्ग प्रैक्टिसेस होती है वो कम होती है। बंद तो हम पूरी तरह से नहीं कर सकते, किसी भी शासन प्रकार में 100% अच्छी थिंग होती है ऐसा नहीं होता, वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ बुरी चीज़ें भी होती है। तो बुरी चीज़ें हम कैसे कम कर सकते हैं, इस पर हम काम कर सकते हैं, और ये आरटीआई के जरिए पॉसिबल होता है। तो आरटीआई हमें कहाँ पर मदद करता है, तो आरटीआई हर एक व्यक्ति का राइट है कि वो डिमांड इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकता है, वेदर इट इज़ ही वांट इंफॉर्मेशन ओरली और बाय रिटर्न। ओके, तो डिफरेंट मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन है डिमांड करने के, उसके जरिए वो डिमांड कर सकता है। So it goes without saying that informed citizens is better equipped to keep necessary vigil on the instrument of governance to make the government and more accountable to the governed. तो इसमें सब जगह पे लॉयल्टी क्रिएट होने में मदद होती है, at institution level, at individual level, at government level, at state level, country level, each and every state. The accountability and responsibility is most important in the democracy. तो हर जगह पे ये क्रिएट होने के लिए मदद होती है। तो जैसे कि बिना शस्त्र युद्ध पर जाना जैसे डेंजरस होता है, ठीक उसी तरह से लोकशाही में जीना, बिना युद्ध के, बिना शस्त्र के जीना लोकशाही में लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ये डेंजरस होता है। तो उन पर अन्याय हो सकता है, उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, तो जज प्राप्त करने के लिए, न्याय प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा आम आदमी को यानी सिटीजन को एक वेपन दिया गया है, उसका नाम है आरटीआई। तो आरटीआई के जरिए आम आदमी भी किसी को भी सवाल कर सकता है, फ्रॉम प्यून टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्यून से लेकर, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक किसी को भी उसको सवाल पूछने का अधिकार प्राप्त होता है, और उसका जवाब देना संबंधित व्यक्ति का, संबंधित संस्था का, संबंधित गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व होता है। तो इसीलिए एक प्रकार से लोगों का गवर्नमेंट पर अंकुश रहता है, ब्यूरोक्रेसी पर अंकुश रहता है, डेमोक्रेसी में अंकुश क्रिएट होता है। ओके, दैट इज बिग स्टेप टू मेकिंग द सिटीजन्स इन्फॉर्म अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। और दूसरी बात ये है, पहली बात क्या है, कंट्रोल, टू क्रिएट द कंट्रोल ऑन द ब्यूरोक्रेसी, ऑन द गवर्नमेंट, फ्रॉम प्यून टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक। ओके, दूसरी बात ये होती है टू इन्फॉर्म द पीपल्स। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हु आर लिविंग in our India, they are categorized under the religions, under the casteisms, under the education, okay, under the poverty, under the richness, under the money, okay, अलग अलग तरीके से विभाजन हम समाज में देखते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, बहुत सारे लोग श्रीमंत होते हैं, अमीर होते हैं, कोई किस कैटेगरी का होता है, कोई किस धर्म का होता है, कोई किस पद का होता है, सब वैरायटीज लोगों में होती है समाज में रहते समय। लेकिन हर एक प्रकार के लोगों को जब वे किसी देश में रहते हैं तो
को सिटीजन कहा जाता है, वो किसी भी प्रकार के हो। पहले तो वो सिटीजन्स है, कॉमन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट द्वारा इन सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाता है, और लोगों का काम गवर्नमेंट से होता है या गवर्नमेंट का काम लोगों से होता है। तो ये इंटरेक्शन डेमोक्रेसी में होते रहता है। दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर्स, एक दूसरे पे भी डिपेंड होते हैं। तो इसके लिए लोगों को इन्फॉर्म करना आवश्यक होता है। यदि गवर्नमेंट के द्वारा जो अच्छे निर्णय लिए गए लोगों को पता ही नहीं चले, तो लोगों को कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट ने क्या निर्णय लिया, वे उनकी राइट्स के प्रति कैसे अवेयर रहेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पे एक काम करना पड़ता है, लोगों को इन्फॉर्म करना। ओके। और यदि ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, पार्लियामेंट्री बोर्ड, मिनिस्ट्री और कोई भी अदर स्टैट्यूटरी बोर्ड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड होता है, तो इन्फॉर्मेशन छुपाने का काम करता है। तो वो इन्फॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू सिटीजन डिमांड कर सकता है, और उस संस्था पर वह इन्फॉर्मेशन देना उसकी जवाबदारी होती है। तो इस तरह से आरटीआई के द्वारा लोगों को एक वेपन की प्राप्ति होती है, जिसके जरिए वे गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं। यदि गवर्नमेंट ने लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, तो लोग खुद आरटीआई का यूज करके इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं। तो इसमें किसका रोल इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पर सवाल खड़ा हो सकता है। यहाँ पर दोनों का रोल इम्पोर्टेंट है। सिटीजन का, सिटीजन को भी अपने राइट्स के प्रति अवेयर होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन के प्रति भी अवेयर होना चाहिए। सरकार से क्या जानकारी प्राप्त होनी चाहिए वो हमेशा लेनी चाहिए, उसका अपने विकास के लिए, देश के विकास के लिए और औरों के विकास के लिए यूज करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो लोग आरटीआई के द्वारा डिमांड कर सकते हैं। The historical background of RTI. The right to information is fundamental right under Article 19. The Indian Constitution in 1976, in the Raj Narayan vs State of Uttar Pradesh case, the Supreme Court ruled that right to information will be treated as fundamental right under the Article 19. तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जानकारी दी गई है कि आर्टिकल 19 इन ब्रैकेट 1 ये कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट। तो नॉलेज यानी प्रॉपर्टी, हर एक इंसान को नॉलेज होता है अपना अपना, और ये बाय बर्थ बाय नेचर उसको प्राप्त हुआ है। और फिर जो चीज़ बाय बर्थ बाय नेचर इंसान को प्राप्त होती है वो उसका फंडामेंटल राइट बन जाता है। ओके। जैसे इंसान को नेचर ने क्रिएट किया है, बाय बर्थ उसका जन्म हुआ है, तो जीने का जो अधिकार है उसको बाय बर्थ या बाय द नेचर प्राप्त हुआ है। उसको घटना या किसी इंसान के द्वारा या राज्य के द्वारा इंसान को यह अधिकार नहीं दिया जाता, और इंसान भी या संस्था या गवर्नमेंट वहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकती कि यह फंडामेंटल राइट है इंसान का। ये नेचर खुद तय करता है या बाय बर्थ ये राइट उसको मिलता है कि उसको जीने का अधिकार है। ठीक उसी तरह से हर एक इंसान जब जन्म लेता है तो उसको नॉलेज प्राप्त होता है बाय बर्थ या बाय नेचर्स। जब वो जन्म लेता है तो धीरे धीरे उसको नॉलेज प्राप्त होता है या नॉलेज वो लेता है। तो जो नॉलेज उसको मिलता है बाय नेचर्स, तो उसका फंडामेंटल राइट्स बन जाता है। लेकिन जब एक गवर्नमेंट के ध्यान में आता है तब गवर्नमेंट ये उसको देता है।
आपको राइट्स नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन जब लोगों के ध्यान में आता है, गवर्नमेंट के ध्यान में आता है, तब ये राइट्स आपको दिया जाता है। सबको ये राइट पहले ही था नॉलेज प्राप्त करने का, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का, लेकिन जब गवर्नमेंट के ध्यान में आया, सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में आया इन 1976, the conflict between the Raj Narayan and VS state of Uttar Pradesh, at that time Supreme Court has given the order that RTI considered as a fundamental rights of human being. तो RTI को एक फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया गया। So here we will stop, remaining part we will take tomorrow. Thank you.